بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں ایرانی صدر کا دو روزہ دورہ پاکستان۔ مسعود پزشکیان کی مزار اقبال پر حاضری، شاعر مشرق کے مزار پر پھول رکھے، فاتحہ خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلمبند کیے، وزیر اعلیٰ مریم نواز سمیت دیگر شخصیات بھی ہمراہ تھیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے صدر نون لیگ میاں نواز شریف کی ملاقات ہوئی، خطے میں امن و امان کی صورتحال سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ایرانی صدر دورہ لاہور کے بعد اسلام آباد چلے گئے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سرکاری دورہ پاکستان کے دوران لاہور ایئرپورٹ پر پہنچے۔ سربراہ مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف، وفاقی وزیر ریاض حسین پیرزادہ نے استقبال کیا۔ ایرانی صدر اور سربراہ مسلم لیگ نون کے مابین ایئرپورٹ لاؤنج میں ملاقات ہوئی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ مفکر پاکستان اور شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے مزار پر حاضری دی۔ ایرانی صدر کا حضوری باغ میں صوبائی وزیر اطلاعات و ثقافت عظمہ زاہد بخاری، صوبائی وزیر ملک صہیب احمد نے استقبال کیا۔ پنجاب رینجرز کے چاکو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ایرانی صدر نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور شاعر مشرق کو خراج عقیدت پیش کیا۔ مولانا عبدالخبیر آزاد نے دعا کرائی۔ ایرانی صدر نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ مزار اقبال پر گروپ فوٹو بھی لی گئی۔ لاہور ایئرپورٹ سے مزار اقبال تک کی اہم شاہراہوں کو مہمان صدر کے خیر مقدمی بینرز اور قومی پرچموں سے سجایا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے مہمان صدر اور ان کے وفد کو لاہور ایئرپورٹ پر پرتپاک انداز میں رخصت کیا۔ کیمرامین ثاقب ملک کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ اب یہاں پر بات کریں، پنجاب میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ چلڈرن ہسپتال کے ڈاکٹرز نے بچی میں پولیو کی تصدیق کر دی۔ 6 ماہ کی متاثرہ بچی کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین نہ دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیو کے خلاف تمام تر اقدامات کے باوجود سنگین خطرہ بدستور موجود۔ یوسی شاہ والی رجان کی بچی میں وائرس پایا گیا۔ پولیو کا خطرہ تاحال برقرار۔ پنجاب میں پولیو وائرس کا ایک اور کیس رپورٹ ہو گیا۔ چلڈرن ہسپتال کے ڈاکٹرز نے 6 ماہ کی بچی کے پولیو کی تصدیق کر دی۔ یوسی شاہ والی رجحان ضلع راجن پور کی 6 ماہ کی بچی میں پولیو کی تصدیق ہوئی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ متاثرہ بچی کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین نہیں پلائی گئی۔ پولیو کے خلاف تمام تر اقدامات کے باوجود سنگین خطرہ بدستور موجود ہے۔ واضح رہے کہ رواں سال پنجاب میں پولیو کا دوسرا کنفرم کیس سامنے آ گیا۔ لاہور سمیت پنجاب میں صارف عدالتیں ختم، سیشن ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز کو کنزیومر کورٹ کے اختیارات مل گئے۔ ہر ضلع کا سیشن جج صارف عدالتوں کا انتظامی جج نامزد۔ صارف عدالت لاہور میں 6 مئی سے کوئی جج نہیں، چیف جسٹس کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں صارف عدالتیں ختم کر دی گئیں۔ پنجاب بھر میں سیشن ججز اور ایڈیشنل سیشن ججز کو کنزیومر کورٹ کے اختیارات دے دیے گئے۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ کی منظوری کے بعد ڈی جی ڈسٹرکٹ جوڈیشری نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن پرانی صارف عدالتوں کے خاتمے کے بعد نئے نظام کے نفاذ کے لیے جاری کیا گیا۔ ہر ضلع کے سیشن جج کو صارف عدالتوں کا انتظامی جج نامزد کیا گیا ہے۔ سیشن جج نئے کیسز عدالتوں کو سونپنے کے مجاز ہوں گے۔ صارف عدالتوں میں زیر التواء پرانے کیسز کا اختیار بھی ضلعی اور سیشن جج کو دے دیا گیا۔ سیشن ججز کو صارف عدالتوں کے پرانے مقدمات ایک یا زائد ججز کو تفویض کرنے کا اختیار حاصل ہوگا۔ کنزیومر پروٹیکشن ترمیمی ایکٹ 2025 جاری ہونے کے بعد ججز کی خدمات پنجاب حکومت سے واپس لی گئیں۔ اب صارفین اپنے مسائل کے حل کے لیے براہ راست سیشن جج یا ان کے مقرر کردہ ایڈیشنل جج کے پاس جا سکتے ہیں۔ شہر میں چینی کی قلت تاحال برقرار، ٹھوکر نیاز بیگ منصورہ شاہدرہ مکہ کالونی والے چینی کے لیے پریشان۔ مدینہ کالونی گلبرگ والٹن روڈ کی آبادیوں میں بھی چینی غائب ہے۔ شہر میں مہنگی چینی بیچنے پر انتظامیہ کے چھاپے، متعدد دکانداروں کو جرمانے اور ایک دکان سیل کر دی گئی۔ شہر میں چینی کی قلت تاحال برقرار ہے۔ ملتان روڈ پر آبادیوں اور کالونیوں میں کریانہ فروشوں کے پاس چینی نہیں۔ ٹھوکر نیاز بیگ منصورہ کے علاقوں میں بھی چینی غائب ہے۔ شاہدرہ کی آبادیوں میں چینی کی قلت برقرار ہے۔ مکہ کالونی، مدینہ کالونی گلبرگ اور والٹن روڈ کے آس پاس کی آبادیوں میں کریانہ فروشوں کے پاس چینی موجود نہیں۔ کریانہ فروشوں کو جرمانوں اور سزاؤں کا سامنا ہے۔ کریانہ فروشوں کا کہنا ہے کہ پہلے سرکاری قیمت پر چینی دی جائے، اس کے بعد اگر کوئی مہنگی بیچے تو پھر سزا دیں۔
महंगाई के हवाले से बात की जाए तो शहर में महंगाई का राज बरकरार है। आवाम सस्ती मुर्गी से भी महरूम हो गए। ब्रायलर गोश्त की कीमत 562 रुपये किलोग्राम मुकर्रर। जिंदा ब्रायलर परचून में 388 रुपये किलो फरोख्त की जा रही है, जबकि अंडे 277 रुपये दर्जन हो गए हैं। सूबाई शहर इक्तदार में महंगाई का जिन बेकाबू। मुर्गी का गोश्त भी शहरियों की पहुंच से दूर होने लगा। ब्रायलर गोश्त की कीमत 562 रुपए फी किलोग्राम रही। साफी गोश्त 650 रुपए फी किलोग्राम तक फरोख्त किया गया। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक जिंदा ब्रायलर थोक 374 रुपए फी किलोग्राम रहा। परचून में जिंदा ब्रायलर की कीमत 388 रुपए रही। शहर में अंडे 277 रुपए फी दर्जन के हिसाब से फरोख्त हुए। अंडों की पेटी 8,190 रुपए में बेची गई। अब यहाँ पर खबर है, सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के कज़न मियाँ शाहिद शफी इंतकाल कर गए। मरहूम शाहिद शफी फैमिली के हमरा मरी में क्याम पजीर थे। शाहिद शफी की मैयत मरी से लाहौर मुंतकिल की जाएगी। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं जानते हैं इब्राहिम कुरैशी से। जी इब्राहिम। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शाहिद शफी के घर के बाहर, जो कि नवाज शरीफ के कज़न और शहबाज शरीफ के कज़न थे। उनके तायजाद भाई हैं और उनका मियाँ फैमिली के साथ एक बड़ी मोहब्बत का और एक बड़ा जो है वो अदब एहतराम का गहरा रिश्ता है। यही वजह है कि उनकी वफ़ात के बाद ना सिर्फ लीग क़यादत अफसरदा है, उनकी आंखें जो है वो इस वक्त अशबार हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो है वो तमाम आला क़यादत भी जो है उस हवाले से अफसोस करती हुई नज़र आती है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने बजाते खुद जो है वो इस हवाले से इजहार अफसोस किया है और काफ़ी गहरे दुख का इजहार किया है। और अगर बात कर ली जाए यहाँ पर उनकी रिहाइश गाह के बाहर, तो इस वक्त रिहाइश गाह के बाहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवामुन्नास का रश, अजीज़ व अकारिब जो है वो उनका रश बढ़ता चला जा रहा है। वक्तन फ़वक्तन बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। फिल वक्त ना कि उनके यहाँ पर जो है वो अहले खाना मौजूद हैं और ना ही जो है वो यहाँ पर उनकी मैयत फ़िलहाल आई गई है। ज़राए के मुताबिक कहा जा रहा है कि उनकी मैयत जो है वो रात 2 से 2:30 बजे तक जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएगी और उसके साथ साथ उनके अहले खाना भी जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन चंद करीबी अजीज़ व अकारिब जो कि उनके ना सिर्फ हमसाए हैं बल्कि उनके कुर्ब जवान में मौजूद हैं, वो जो है वो इस वक्त उनके घर में मौजूद हैं। इंतज़ामात बाकायदा तौर पर जो है वो यहाँ पर उनकी जानिब से देखे जा रहे हैं। तमाम इंतज़ामात जो है वो हो गए हैं, बस उनकी मैयत की आमद का जो है वो इंतज़ार है कि उनके अहले खाना आए और यहाँ पर जो है वो फिर आला सियासी क़यादत और उसके साथ साथ तमाम सियासी और समाजी शख्सियात जो है वो इस हवाले से शिरकत करेंगी। कल इत्तफाक मस्जिद में जो है वो उनका मॉडल टाउन में नमाज जनाजा अदा किया जाएगा, ज़राए का कहना है। लेकिन हतमी ऐलान जो है वो उनके अहले खाना की जानिब से ही किया जाएगा, जो कि उनकी मैयत के पहुँचने के बाद किया जाएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कल बाद नमाज असर उनका जो है वो नमाज जनाजा मॉडल टाउन इत्तफाक मस्जिद में अदा किया जाएगा। जबकि मौत की जो असबाब है उन हवाले से ये कहा जा रहा है कि मियाँ मोहम्मद शफी जो है वो शाहिद शफी जो है वो काफ़ी ज़्यादा तंदुरुस्त नहीं थे, दिल के आर्जा में मुब्तला थे और उनका पहले भी जो है वो इस हवाले से इलाज मालजा जो है वो जारी था। लेकिन बिल आखिर आज जो है वो उनको अचानक से दिल का दौरा पड़ने के सबब जो है वो रज़ा इलाही से जो है वो इंतकाल कर गए और उनका जो नमाज जनाजा है वो इत्तफाक मस्जिद मॉडल टाउन में अदा किया जाएगा और जहां पर उनकी अचानक मौत से तमाम नमाज जनाजा आज इत्तफाक मस्जिद में अदा की जाएगी। इब्राहिम कुरैशी, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का घर घर बायोमेट्रिक सर्वे प्रोग्राम। हुकूमत सर्वे प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए मालियत से 10,000 बायोमेट्रिक टैबलेट्स खरीदेगी। दूसरी जानिब स्पेशल बच्चों को सेंटर्स में दूध और बिस्किट्स देने का मंसूबा मंजूर हो गया। पंजाब हुकूमत 1 अरब रुपए खर्च करेगी। पंजाब हुकूमत का घर घर बायोमेट्रिक सर्वे प्रोग्राम। हुकूमत सर्वे प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए मालियत से 10,000 बायोमेट्रिक टैबलेट्स खरीदेगी। हुकूमत आवाम के समाजी और मुआशी डाटा के दुरुस्त अंदराज के लिए टैबलेट खरीदेगी। पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री के तहत घर घर सर्वे शुरू होगा। सर्वे का मकसद मुस्तहिक खानदानों को फ्लाहिज के मुतहत सब्सिडी फ्राहम करना है। फील्ड टीमें इन टैबलेट्स के जरिए घर घर जाकर खानदानों का बायोमेट्रिक तस्दीक शुदा डाटा जमा करेंगी। डिजिटल सिस्टम से मुस्तहिक अफराद के दुरुस्त निशानदही हो सकेगी। स्पेशल बच्चों को सेंटर्स में दूध और बिस्किट्स देने का मंसूबा मंजूर हो गया। पंजाब हुकूमत 1 अरब रुपए खर्चाएंगे। मंसूबे का मकसद बच्चों को सेहतमंद खुराक फराहमी है। PND बोर्ड ने मंसूबे की मंजूरी दे दी। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन मोहम्मद खान रांझा का कहना है कि महकमा स्पेशल एजुकेशन के तहत 40,000 स्पेशल बच्चों को उनके सेंटर्स में दूध और बिस्किट्स फराहम किए जाएंगे। महकमा हायर एजुकेशन की नई बिल्डिंग को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है। होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन कॉलेज को भी सोलर पर मुंतकिल किया जाएगा। महकमा तवानाई महकमा हायर एजुकेशन, होम इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन कॉलेज को सोलर पर मुंतकिल करेगा।
पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 सूबाई असम्बली से मंजूर। कानून के तहत सूबाई डायरेक्टोरेट जनरल कायम किया जाएगा। पंजाब के दीगर शहरों में PHS एजेंसी में तब्दील हो जाएंगी। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2025 सूबाई असम्बली से मंजूर हो गया। कानून के तहत सूबाई डायरेक्टोरेट जनरल कायम किया जाएगा। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी का सरबराह डायरेक्टर जनरल होगा, जिसकी तैनाती अमल में लाई जा चुकी है। DG पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी 3 साल के लिए तैनात किया गया है। मौजूदा जिला अथॉरिटियां एजेंसी में तब्दील कर दी जाएंगी। जिलाई एजेंसी का MD भी 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा। पंजाब हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी सालाना बजट मंजूर और अहदाफ का तयन करेगी। नए कानून के तहत PHA एजेंसियों का जाल सूबा भर में फैलाया जाएगा। कानून के तहत पार्क, ग्रीन बेल्ट और ग्रीन एरिया से मुतालिक पॉलिसियां बनाई जाएंगी। आउटडोर एडवर्टाइजमेंट और PHA रेवेन्यू जनरेशन मॉडल्स तश्कील दिए जाएंगे। एक्ट के मतन के मुताबिक अवामी पार्क्स, ग्रीन बेल्ट और सब्ज इलाकों की बेहतरी के लिए कानून साजी हुई। विरसा पार्क, खेल के मैदान और दीगर सब्जादार भी एक्ट के दायराकार में शामिल हैं। वज़ीर आला अथॉरिटी की चेयरपर्सन होंगे। हर एजेंसी का चेयरमैन अथॉरिटी का रुकन होगा। महकमा दाखिला का गदागरी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला। गदागरी के खात्मे के लिए खसूसी कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद होंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने गदागरी के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। इस हवाले से एक आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी के सरबराह सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद अख्तर महमूद होंगे, जबकि DIG स्पेशल ब्रांच, MD सेफ सिटी, CTO कमेटी के मेंबरान होंगे। कमेटी के दीगर अरकान में DG सोशल वेलफेयर, एडिशनल सेक्रेटरी होम, एडिशनल सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन, DG चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, DG FIA का नुमाइंदा शामिल होगा। कमेटी गदागरी के खात्मे के लिए तजावीज़ तैयार करेगी। ये कमेटी 15 रोज में लाहौर समेत पंजाब भर में गदागरी के खात्मे के लिए तजावीज़ देगी। इंसदाद गदागरी कमेटी का इजलास सोमवार को महकमा दाखिला में तलब कर लिया गया है। कैमरामैन सैयद मिराज के साथ कैसर खोकर, सिटी 42। 5 मरला घर की टैक्स छूट में बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। साल 2022 से इसकी ऑडिट रिपोर्ट में 13 करोड़ 65 लाख की टैक्स छूट मुश्तबा करार। महकमा एक्साइज की जानिब से कई गैर मुस्तहिक अफराद को टैक्स छूट दे दी गई। कई घरों का रकबा 5 मरले से ज़ायद निकला। वेरिफिकेशन के बगैर छूट दे दी गई। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से 5 मरला घरों को दी गई टैक्स छूट में संगीन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ। माली साल 2022 से इसकी ऑडिट रिपोर्ट में 13 करोड़ 65 लाख रुपए की मुश्तबा टैक्स एग्जेम्पशंस को काबिल एतराज करार दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक कई गैर मुस्तहिक अफराद ने 5 मरला घरों की आड़ में प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत हासिल की, जबकि छूट की मुतअद्दिद केसेस में घरों का रकबा 5 मरले से ज़ायद निकला। ऑडिट रिपोर्ट ने इंकशाफ किया कि बाज़ केसेस में एग्जेम्पशंस के लिए दरकार बुनियादी दस्तावेज़ात भी मौजूद नहीं थी। फील्ड वेरिफिकेशन और प्रॉपर्टी की जांच पड़ताल के बगैर ही टैक्स की छूट दे दी गई, जिससे कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा। LOS नाला के हिफाजती जंगले टूट फूट का शिकार, शहरियों को मुश्किलात का सामना। जंगले ना होने से शहरियों का नाला अबूर करने पर हादिसात का खदशा है। नशे के आदी अफराद नाले के गिर्द लगे हिफाजती जंगले ले गए। शहरियों का कहना है कि नाला क्रॉस करने में बच्चों और खवातीन को मुश्किलात का सामना रहता है। मजीद शहरियों का क्या कहना है, जानते हैं आदिया नाथ से। जी आदिया। बिल्कुल, शहर में बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो कि जिन पर डिस्कशन होना बहुत ज़रूरी है। LOS नाले के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर हिफाजती जो जंगले लगाए गए थे वो अब टूट फूट का शिकार हैं, जंग आलूद होकर टूट रहे हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि गुज़श्ता 2 साल से तवज्जो ही नहीं है। अदम तवज्जोही के बायस ना तो इसके ऊपर जो किसी किस्म की कोई मुरम्मत देखने में आई, और अगर जंग लगा है तो लगा रहने दिया गया, जिसकी वजह से अब आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन पूरे रोड के ऊपर लगा हुआ ये जो जंगला है वो अब टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये लगाया इसलिए गया था ताकि लोग जो हैं वो जान जाएं कि नाला है और रोड जो है क्रॉस करने की कोशिश ना करें। ऐसे में जो है वो हादसात का खदशा भी बढ़ गया है। इसके अलावा सड़क के हवाले से ये भी बताया जाता है, इक्का दुक्का साइड पर हमें जो है वो नज़र आता है कि जी पोल लगे हुए हैं, स्ट्रीट लाइट्स ऑन है, लेकिन अगर थ्रू आउट पूरे रोड पर आप देखें तो आपको ब्लैकआउट ही नज़र आएगा, जो कि खुदा न खासा किसी लम्हे भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है और गाड़ी जो है वो नाले की तरफ जा सकती है। बहरहाल यहाँ से गुजरने वाले यही मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत तवज्जो दे। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर कोई चीज़ बनाई जाती है तो डेफिनेटली वो मेंटेनेंस मांगती है, और मेंटेनेंस ना होने की वजह से चीज़ें तबाहाली का शिकार हैं। हुकूमत नई चीज़ों की जानिब तवज्जो दे रही है, लेकिन जो पुरानी चीज़ें बनी हुई हैं उनको सेट करने की जानिब जो है वो किसी किस्म की कोई तवज्जो नज़र नहीं आती है। जी आदिया, बहुत शुक्रिया आपका।
बाबा फरीद कॉलोनी दरस वाली गली सीवरेज मसाइल का गढ़ बन गई। इलाका मकीनों का दरीना सीवरेज मसाइल हल न होने पर एहतजाज, वासा इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। बाबा फरीद कॉलोनी दरस वाली गली के इलाका मकीनों का कहना था कि दरीना सीवरेज मसाइल ने जिंदगी अजीरन बना रखी है। 3 माह से गलियों में सीवरेज का पानी जमा है, आमदोरफ्त मुतासिर है। गंदगी और गलाजत ने इलाके का माहौल ताफून ज़दा कर रखा है। इलाका मकीन कहते हैं वासा इंतजामिया शिकायत पर मसाइल हल करने की बजाय टाल मटोल से काम ले रही है। मुंतखब सियासी नुमाइंदे भी बुनियादी सहूलियात के फराहमी के वादे पूरे करने में नाकाम हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। शहरी पीको रोड, कश्मीर चौक, लिंक रोड पर बैंक स्टॉप, वन वे गुजरने लगे। मॉडल टाउन, अरफा क्रीम टावर समेत दीगर इलाकों में खिलाफ वर्जी मामूल बन चुकी है। मजीद अहवाल जानेंगे हसनैन औलख से। जी हसनैन। शहर में ट्रैफिक कवानीन की सरेआम जो खिलाफ वर्जी है वो जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉडल टाउन लिंक रोड के करीब, और यहाँ पर जो शहरी हैं, ख़ास तौर पर जो मोटर बाइकर्स हैं, चिंची वाले और ऑटो रिक्शा वाले जो हैं, उनकी जानिब से वन वे की खिलाफ सिमत में ट्रैफिक जो गाड़ियाँ हैं वो चलाई भी जा रही हैं। ट्रैफिक की जो रवानी है उसको भी मुतासिर किया जा रहा है और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। आया कि यहाँ पर कुछ ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो भी मौजूद हैं और उनके होते हुए भी जो शहरी हैं वो किसी खातर में नहीं ला रहे ट्रैफिक कवानीन को और ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये जो सूरत हाल है ये यहाँ पर लिंक रोड के करीब जो यू टर्न है वहाँ पर भी यही है। इसके अलावा मुख्तलिफ यही इसी रोड पर मौलाना शौकत अली रोड के ऊपर अगर बात की जाए पिंडी स्टॉप का जो यू टर्न है वहाँ पर भी यही सूरत हाल देखी गई है। इसी तरह अरफा क्रीम टावर की सूरत हाल की बात की जाए तो वहाँ से कोट लखपत आने के लिए जो मोटर बाइकर्स हैं, चिंची और ऑटो वाले हैं, वो वन वे की खिलाफ सिमत में ट्रैफिक करते हुए दिखाई देते हैं, गाड़ियाँ चलाते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए बैंक स्टॉप की तो वहाँ से जो फ्लाईओवर बने हुए हैं वहाँ पर भी जो मोटर बाइकर्स हैं, इसी तरह कारों वाले या फिर चिंची और ऑटो वाले जो हैं वो ट्रैफिक की सिमत के खिलाफ जो ड्राइव है वो करते हुए दिखाई देते हैं। और ये जो सूरत हाल है इसकी वजह से ना सिर्फ जो ट्रैफक रवानी है वो मुतासिर होती है बल्कि जो हादसात है वो भी रूनमा होते हैं। और अगर शहरियों की बात की जाए तो उनका ये कहना है कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बिल्कुल हादसात रूनुमा होते हैं। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। जमात इस्लामी के 8 मुतालबात, बलोचिस्तान तंजीम ने 6 माह का वक्त दे दिया। मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना है कि मुतालबात पर अमल दरामद ना हुआ तो फिर 6 माह बाद कोयटा से इस्लामाबाद जाएंगे। बलोचिस्तान में सिर्फ गोली पंजाबी का शिनाख्ती कार्ड देकर ही नहीं बल्कि बलोचियों का शिनाख्ती कार्ड देकर मारी जाती है। लियाकत बलोच का कहना था कि सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर बलोचिस्तान की माओ बहनों से तज़हीक आमेज रवैया होता है। वज़ीर आज़म ऐसा लायहा अमल बनाए ताकि आवाम की तौहीन ना की जाए। मंसूरा में बलोचिस्तान के अमीर मौलाना हिदायतुर रहमान और नायब अमीर लियाकत बलोच ने दीगर रहनुमाओं के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बलोचिस्तान की महरूमियां खत्म करने का मुतालबा कर दिया। मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना था कि बलोचिस्तान की सिक्योरिटी पर 83 अरब रुपए खर्च होते हैं। कौन है जो वहाँ दहशतगर्दी करके मासूम पंजाबियों और बलोचों का कत्ल कर रहा है। उनका कहना था कि हुकूमत के सामने जो 8 मुतालबात रखे हैं इस पर अमल दरामद हुकूमत की जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह मिलजुल के इंशाल्लाह अपने अक़वाम के लिए, अपने लोगों के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए, अपने सूबे की खिदमत के लिए हम जद्दोजहद इंशाल्लाह जारी रखेंगे। 6 महीने हमने फ़र्क महसूस नहीं किया ये 8 मुतालबात, फिर इंशाल्लाह कोयटा से इस्लामाबाद हम दोबारा इंशाल्लाह ऐलान करेंगे लॉन्ग मार्च का। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था बलोचिस्तान के मामले पर हुकूमत के साथ गन पॉइंट पर मुज़ाकरात नहीं हुए बल्कि हुकूमत पर दबाव डालकर अपने मकासद को कामयाब किया। ईरानी सदर के दौरे पर हुकूमत गैस पाइपलाइन के मुआहदे पर अमल दरामद शुरू कर दे। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान गैस पाइपलाइन का एक तवील मुद्दत से जो ज़ेरे इल्तवा मामला है, आज ईरान के सदर की आमद के साथ पाकिस्तान की हुकूमत को जुर्रत का मुजाहरा करना चाहिए और उन्हें चाहिए कि इस मुआहदे पर अमल करें। लियाकत बलोच का कहना था कि बैरिस्टर गौहर से इस्लामाबाद में मुलाकात हुई। उनका कहना था 5 अगस्त को पीटीआई का एहतजाज सियासी और आईनी हक है, पुरअमन रहकर एहतजाज करें। उनका कहना था कि हुकूमत पीटीआई के एहतजाज में रुकावट की बजाय इन्हें एहतजाज का हक दे। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ हसन अली, सिटी 42।
सरशाह टाउन ठोकर न्याज बेग में तरक्याती मनसूबों के इफ्तिताह की मुनासबत से जलसा सूबाई वजीर मलिक फैसल अयूब खोखर, सदर नून लीग लाहौर मलिक सैफ अल मुल्क खोखर ने शिरकत की। न्याज बेग के लिए 200 करोड़ के तरक्याती मनसूबों का ऐलान किया गया। सूबाई वजीर खेल व लेबर मलिक फैसल अयूब खोखर ने जलसा के शुरका से खिताब में न्याज बेग के लिए 200 करोड़ के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया। कहा, मरियम नवाज के धीरानी प्रोग्राम के तहत अपनी बेटियों की शादी करेंगे, राशन कार्ड भी देंगे। मुझे याद है मैं तकरीरों में कहता था कि न्याज बेग की ऐसी कोई सड़क नहीं बचेगी जिसको हम बदलेंगे नहीं। 200 करोड़ लेके आज मैं आपकी कदमों में आया हूँ। न्याज बेग की एक भी गली नहीं बचेगी इंशाअल्लाह ताला। नए कानून के तहत 12,40,000 खानदानों को राशन कार्ड देने जा रहे हैं। मलिक सैफ अल मुल्क खोखर का कहना था, न्याज बेग गाँव में 13 अरब का सीवरेज, ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस और 200 करोड़ के तरक्याती मंसूबे नून लीग ने दिए। सड़कें बनेंगी, नालियां बनेंगी, सीवरेज डलेगा, वाटर पानी पीने का पानी मिलेगा। अल्लाह के फजलो करम से आज आगाज हो रहा है कि वो सब काम इंशाल्लाह होंगे। जैसे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मिले थे, डिग्री कॉलेज मिले थे, स्कूल मिले थे, अस्पताल मिले हैं, आज इंशाल्लाह लाइब्रेरियों का भी ऐलान करते हैं, लाइब्रेरियां भी मिलेंगी। चौधरी तारक अजीज रांचा, मलिक अनुश अजमत खोखर, मलिक फयाज हुसैन खोखर नंबरदार और चौधरी रफाकत रियाज ने इंतजामी अमूर संभाले। जलसा आम में समाजी व सियासी शख्सियात, मेंबरान लोकल बॉडी, लीगी कारकुनान व अहलियाने इलाका ने शिरकत की। कैमरामैन नदीम भट्टी के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-तमाम पहली नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का इनेकाद हुआ। मुहक्किकीन, तलबा व तालिबात और तिब्बी पेशावर अफराद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में इलाज का जदीद तरीक़ाकार पर गुफ्तगू की गई। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-तमाम पहली नेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का इनेकाद हुआ। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज ने बताया कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का मकसद तहकीक को आगे बढ़ाने वाले अदारों की हौसला अफजाई है। सबसे बड़ी हमारी जो ख्वाहिश है कि हम अपने स्टूडेंट्स की तवज्जो जो है ना रिसर्च पे और इनोवेशंस पे उसकी तरफ उनकी तवज्जो लेकर आएँ। इसीलिए हमने आपने देखा है कि ना सिर्फ लाहौर के बल्कि पंजाब के और पंजाब से बाहर के भी मेडिकल कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स आज यहाँ पर आए हुए हैं। 1500 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स हैं। प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मोइन ने तिब के मुस्तकबिल को तश्कील देने वाले बैनुल ज़ाब्ता ताउन को फ़रोग देने के लिए एक मुतहर्रिक प्लेटफॉर्म तश्कील दिया ताकि तलबा और तालबात अपने ख्यालात के तबादले और जदीद तहकीक को पेश कर सकें। इसके अंदर 1500 स्टूडेंट्स आए हैं, सिर्फ ऑल अक्रॉस पाकिस्तान है। 50 मेडिकल कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम चाहते ये हैं कि सिर्फ किंग एडवर्ड ही आगे ना लेके चलें, बल्कि हम किंग एडवर्ड के साथ बाकी लोगों को भी साथ आगे लेके चलें। उन्होंने कहा कि इज्तिमा एक तालीमी संगे मील से ज्यादा है। ये हमारे इस यकीन की तस्दीक है कि तहकीक सेहत की तब्दीली की बुनियाद है। प्रोफेसर डॉक्टर फारूक अफजल और प्रोफेसर डॉक्टर अस्कर नकीन ने कहा, ये साइंसी तजस्सुस कम्युनिटी के मुताबिकत को पूरा करता है जो मुस्तकबिल में बेहतरीन रहेगा। इसका जो इन्होंने मोटो भी रखा हुआ है वो इनोवेशन के बारे में, तो आई थिंक रिसर्च अगर नई ट्रुथ का हमें बताए, नई सच्चाई का बताए और जिसे कहते हैं ग्लोबल प्रॉब्लम्स और लोकल सॉल्यूशन, तो अगर हम बच्चों को रिसर्च की तरफ ट्रेन करते हैं तो इंशाल्लाह उससे हमारे जो अपने प्रॉब्लम्स हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्व करने में मदद। सबसे कीमती चीज़ आइडिया होता है और इनके पास, यंग माइंड्स के पास, ब्रिलियंट माइंड्स के पास बहुत से आइडियाज़ हैं। तो हमने इसको एक्सप्लोर करने की कोशिश की है, हम आइडेंटिफाई करें कि इनके कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे हम ये जान सकते हैं कि आगे हेल्थ केयर के अंदर कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। तकरीब में पाकिस्तान भर से 50 तिब्बी तदरीसी अदारों से 1500 से जायद शुरका शरीक हुए। मुहक्किकीन, तलबा व तालबात और तिब्बी पेशावर अफराद शामिल हुए। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। जश्न आज़ादी की तैयारियों के हवाले से बात की जाए तो जश्न आज़ादी की आमद है। तैयारियों का सिलसिला शुरू हो गया है। शहरियों ने जश्न आज़ादी को जोशो खरोश के साथ मनाने के लिए उर्दू बाजार का रुख कर लिया। होल सेलर्स ने वज़ीर आला पंजाब से 10 रोज़ के लिए स्टॉल्स लगाने की इजाज़त तलब कर ली है। अगस्त का महीना शुरू होते ही जश्न आजादी की तैयारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। उर्दू बाजार के होल सेलर्स का कहना है कि हर साल मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। इस बार इंक्रोचमेंट के पेश नजर स्टोर्स लगाने की इजाजत नहीं। वजीर आला मरियम नवाज से दरख्वास्त है कि सिर्फ 10 दिन के लिए स्टोर्स लगाने की इजाजत दी जाए। मैं तो अपनी वजीर आला से गुजारिश करूँगा
आज़ादी का दिन है। हम लोगों को बल्कि पाकिस्तानी अवाम को इजाज़त दें कि वो अपने मोहल्लों में, घरों में, दुकानों के बाहर चंद दिनों के लिए ये स्टॉल लगाएं ताकि लोग अपनी इस्तिताअत के मुताबिक ना वहाँ से ख़रीद सकें। कस्टमर नहीं है, हमारी मैडम सीएम से यही गुजारिश है, आपकी मेहरबानी हमें 10 दिन के लिए कम से कम स्टॉल लगाने दें, जिससे हमारा रोजगार जो है ना वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। बच्चे बड़े सभी जश्न आजादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए सब्ज हलाली परचम, झंडियां, बैचेस, कैप, चूड़ियां, बैंड्स और दीगर अशिया खरीदने उर्दू बाजार पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि घरों को सजाना है, स्कूल के लिए भी तैयारियां कर रहे हैं। छोटे झंडे लेने हैं, अपने स्कूल बैच लेने आए हैं अपने स्कूल के लिए। क्रेज़ है सबको कि हम अपनी आज़ादी मनाएंगे इंशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से। बच्चों की प्रिपरेशन इस तरह की होती है कि हम अभी शॉपिंग कर रहे हैं, उनकी हर चीज़ उनकी ले रहे हैं, हर चीज़, बैजेस भी हैं, झंडियाँ भी हैं, झंडे भी हैं। आजादी का महीना बेशुमार खुशियां ले आता है, जो कि स्टोर्स लगने की सूरत में बेरोजगारों के लिए रोजगार का बड़ा जरिया भी बन जाता है। कैमरामैन राना अजीम की हमरा आदिया नाज, सिटी 42। गुलबर्ग प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के इंतखाबात की वोटर्स लिस्ट जारी कर दी गई। इंतखाबात 18 अगस्त को होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद फयाज चौधरी उम्मीदवारों की मौजूदगी में 260 वोटर्स पर मुश्तमिल लिस्ट का ऐलान किया गया। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मोहम्मद फयाज चौधरी का कहना था, वोटर लिस्ट का मरहला मुकम्मल हो चुका है। फ़ख्र है कि इस मरहले को शिफाफ तरीके से मुकम्मल किया गया, किसी भी जामदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। 9 उम्मीदवार इत्तेहाद ग्रुप, 9 उम्मीदवार इत्तफाक ग्रुप से हैं। 18 अगस्त को इलेक्शन के रोज़ के लिए हर उम्मीदवार की जानिब से एक पोलिंग एजेंट दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन वन अजहर अब्बास शाह का कहना था, जो उम्मीदवार ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ लाजमी कार्रवाई की जाएगी। इलेक्शन मुहिम 48 घंटे कबल ख़त्म कर दी जाएगी। पाकिस्तान यूनाइटेड वर्कर्स फेडरेशन और ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन के ताउन से ख़वातीन सैनिटरी वर्कर्स के लिए तरबती वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। LWMC की ख़वातीन सैनिटरी वर्कर्स ने शिरकत की। ख़वातीन सैनिटरी वर्कर्स के लिए सेहत और सफाई के हवाले से तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद PUWF ऑफिस इकबाल रोड में किया गया। तरबियती वर्कशॉप में सैनिटरी वर्कर्स को दौरान ड्यूटी खुद की सेहत और सफाई का ख्याल रखने के लिए आगाही फ्राहम की गई। मेंबर मिनॉरिटी एडवाइजरी कौंसिल पंजाब सुहेल आलम ने तरबियती वर्कशॉप में खासूसी शिरकत की। प्रोग्राम डायरेक्टर ज़ोक अख्तर और जनरल सेक्रेटरी ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन मोहम्मद रिजवान भी शरीक हुए। तरबियती वर्कशॉप के इख्तिताम पर सुहेल आलम ने सैनिटरी वर्कर्स में सेफ्टी किट्स तकसीम की। सुहेल आलम की जानिब से सैनिटरी वर्कर्स के लिए तरबियती वर्कशॉप के इनेकाद को सराहा गया। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के ज़ेर-एहतमाम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। चेयरमैन PEF मलिक शुएब आवान और MD PEF शाहिद फरीद ने खासूसी शिरकत की। सेमिनार में चेयरमैन PEF का कहना है कि तालीम की बेहतरी के लिए सरकारी और निजी शोबे को मिलकर काम करना होगा। तालीम के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है। MD PEF ने कहा कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल है। PEF पब्लिक प्राइवेट मॉडल के तहत 37 लाख से ज़ायद बच्चों को मायारी तालीम फ्राहम कर रहा है। पब्लिक प्राइवेट मॉडल के तहत तालीम की रसाई दही इलाकों तक मुमकिन हुई। PSRP से मुंसलिक 10,000 सरकारी स्कूलों में बेहतरी लाना PEF मॉडल की कामयाबी का सबूत है। फ्लैटिस होटल में पाक ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से YTO ट्रैक्टर्स की लॉन्चिंग तकरीब मुनाकिद हुई। वफाकी वज़ीर तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ सैयद इमरान शाह की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। वफाकी वज़ीर का कहना है कि पाकिस्तान मुआशी बहरान से निकल चुका है और अब अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अबू ज़रशाद ने बैरून मुल्क से 200 अरब रुपए वापस लाने का मुतालिबा दोहराया। ट्रेडर्स मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से YTO ट्रैक्टर्स की लॉन्चिंग तकरीब हुई। वफाकी वज़ीर तख़फ़ीफ़ गुरबत और समाजी तहफ़्फ़ुज़ सैयद इमरान शाह का कहना था कि पाकिस्तान को दरपेश मुआशी बहरान और IMF के दबाव के बावजूद हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया, अब तरक्की की राह पर गामज़न है। शहबाज शरीफ साहब की विल है, कोशिश है, दिन रात एक करके हम इंशाअल्लाह ताला, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, अगले आइंदा सालों में हम इंशाअल्लाह ताला ये फील्ड मार्शल और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में हम पाकिस्तान को एशियन टाइगर बना के दिखाएंगे। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर अबू ज़रशाद ने कहा कि 700 अरब रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ज़ाया किए जा रहे हैं। अगर ये रकम ज़राअत पर लगाई जाए तो कौम को भीख से निजात मिल सकती है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पे 700 अरब ज़ाया कर रहे हैं आप।
मैं ऑनेस्टली बात कह रहा हूं आपको, ये 1400 अरब एक दफा दे दे, लोगों को एग्रीकल्चर में डाल दें, ये भिखारी ना पैदा करें, छोड़ दें ये भिखारीपन। वाईटीओ ट्रैक्टर्स के सीईओ हमजा का कहना था कि पहली बार पाकिस्तान में ऐसा ट्रैक्टर लाया जा रहा है जो एआई इंटेलिजेंस के जरिए भी ऑपरेट किया जाएगा। पाक ट्रेडर्स कंपनी पाकिस्तान और वाईटीओ ट्रैक्टर्स चीन के इश्तराक से एक तारीखी संगे मील है, जिससे रोजगार में इजाफा होगा। कैमरामैन मकसूद बट के साथ तलहा अशरफ, सिटी 42। डीएचए प्रॉपर्टी डीलर्स ओहदेदारान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। सीईओ ज़ीशान स्ट्रीट एंड खोखर बिल्डर्स की जानिब से एहतमाम किया गया। कारोबारी, सियासी और समाजी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डीएचए फेज़ 3 में वाक़या ज़ीशान स्ट्रीट एंड खोखर बिल्डर्स के सीईओ मलिक ज़ीशान खोखर ने तकरीब सजाई। सदर डीएचए प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन ज़ीशान बट, नायब सदर मोहम्मद अबरार, सीनियर वाइस चेयरमैन उमर मलिक शरीक हुए। चेयरमैन कौमी ताजिर इत्तेहाद मिस्टर टाउन पप्पू खोखर, एसपी कैंट जाहिद निज़ामी भी मौजूद थे। खेल के मैदान से खबर है। दूसरा राना ज़हीर मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट के हवाले से डार हॉकी अकेडमी और राना ज़हीर अकेडमी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल मरहले में मैप्को और पाक हीरोज़ क्लब को शिकस्त का सामना रहा। फातेह टीमों के कोचेस फाइनल में जानदार हॉकी खेलने और टूर्नामेंट जीतने के लिए पुरअज़म हैं। नेशनल हॉकी स्टेडियम में खेले गए पहले सेमीफाइनल मैच में सख्त मुकाबला देखने में आया। डार हॉकी एकेडमी ने मैप्को को 4 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दी। दूसरे मैच में राना ज़हीर हॉकी एकेडमी हरीफ टीम पर हावी रही। मुकाबले में पाक हीरोज क्लब को 3 के मुकाबले में 8 गोल से हराकर फाइनल में जगह बनाई। हेड कोच डार अकेडमी ओलंपियन दानिश कलीम और हेड कोच राना ज़हीर अकेडमी ओलंपियन काशिफ शाह कहते हैं, सेमीफाइनल में अच्छी हॉकी खेलकर जीते। फाइनल में भी कांटेदार मुकाबले की तवक्को है। तो मुझे ये बड़ी खुशी की बात है कि ये सारे हॉकी प्लेयर ओलंपियन, उन्होंने सब ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। तो इस वक्त इस टूर्नामेंट में सारे पाकिस्तान प्लेयर जूनियर सीनियर सब खेल रहे हैं, तो इससे अच्छा टूर्नामेंट नहीं हो सकता। तो ये मैं कहूँगा इंशाल्लाह ताला अगली दफ़ा भी इससे बड़ा टूर्नामेंट होने की मुझे उम्मीद है। डार अकेडमी की बहुत ही अच्छी टीम है, बहुत ही अच्छे प्लेयर वहाँ से भी खेल रहे हैं, तो तमाशाइयों को जो शायकीन है उनको बहुत अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और हमारी जो प्लानिंग है इंशाल्लाह रिकवर करके उस पर कल काम किया जाएगा ताकि अच्छे से अच्छा मैच शायकीन को देखने को मिले। वेटरन क्रिकेटर चौधरी शफकत का कहना है कि कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए तमाम इदारों को अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। बड़ी अच्छी एफर्ट है और दूसरों को भी ये ब्यूरोक्रेसी में दूसरे डिपार्टमेंट जो है ऐसे इवेंट करवाने चाहिए ताकि लोगों का एक चाम और इसमें मिलजुल के हम इसको इंशाल्लाह ताला हॉकी को ज्यादा प्रमोट करें। डार हॉकी एकेडमी और राना ज़हीर अकेडमी के दरमियान फाइनल इतवार की दोपहर 4 बजे खेला जाएगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद अली फाइनल के मानिक खुशी होंगे। कैमरामैन रिजवान अली के हमरा राना अजन्नू, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।